check. Okay, fine. So recording has been started now. So last class में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देख लिया था आइगन वेक्टर्स देख लिया था, देन हमने बेसिस देखा था, बेसिस के बाद हमने ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स देखे थे. देन हमने क्या देखा था? हमने देखा था कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, कुछ वेक्टर्स, कुछ आइगन वेक्टर्स. तो ये हमारे कुछ आइगन वेक्टर्स थे. दीज आर माय बेसिसेस. तो हम यहाँ पर कुछ बेसिस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दीज आर माय बेसिस. नाउ जस्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक हमारे पास जो डेटा था exactly my data is exactly, let's say, x. Fine. So x is represented as an, and we started like uh, let's say we are having some orthonormal vectors p n. So we are having p1 to pn, or we are having some orthonormal vectors, and let's say our data is let's say m cross n vectors. Fine. So मेरा x जो था, this is m cross n था. तो इट मीन्स दैट मेरे पास n नंबर के कॉलम्स हैं और मेरे पास m नंबर की रोज हैं. फाइन. सो अब क्योंकि मैं उनके वेक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो लेट्स से वी आर हैविंग p1 टू pm. p1, लेट्स से दिस इज माय p1 टू pn आर माय ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स. मेरा डेटा क्या था? m क्रॉस n, m number of rows and n number of columns. So let's say we are having orthonormal vectors that are p1, p2 up to pn. So these are again, and each p's are supposed to be the n cross n vectors. Let's say p1, p2 up to pn. Fine. So this is again supposed to be my square matrix. Then my data. So my data is again, let's say m cross n matrix. So we are having m number of rows. So these are m number of rows, and each belongs to n dimension. So each belongs to n dimension. It means that x1 contains n vectors. Again, x2 contains n number of columns, x3 contains n number of columns, xm contains again n number of columns. Fine. So n number of elements or m number of columns. Fine. So these are my data points, and we suppose that this x is such that like x1 to xm are the rows of our matrix with mean is equals to 0 and my variance is like यूनिट वेरिएंस. हम इस पर काम करेंगे और हम इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करेंगे. फाइन. हम कॉलम वाइज भी उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स से वी स्टार्टेड विथ लाइक दैट ईच एक्सरसाइज. सो वी वांट टू रिप्रेजेंट ईच एक्सरसाइज लाइक हमारे पास ईच एक्सरसाइज था, मेरे पास एक हर एक रो थी. हम उस हर एक रो को लेट्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज जस्ट लाइक इन कॉम्बिनेशन ऑफ योर अल्फा 1 i1, sorry, this is alpha into p1. So this is how you can say that each exercise is represented as alpha I p1, then alpha I2 into p2 up to alpha n pn. और ये हम लोगों ने देखा था. This is my something like constant value, and this is my orthonormal vectors. Again, this is a constant value, a scalar value, sorry, scalar value, and this is again orthonormal vectors. So हमने जो लास्ट में देखा था कि हमारा अल्फा जो हम कैलकुलेट करते थे, लेट्स से दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज, लेट्स से सपोज दिस इज बीटा. तो हमने बीटा में हमने क्या देखा था? हम बीटा को क्या कर सकते थे? हमने जब इसमें सबकी तरफ लेट्स से हमने दोनों तरफ से p1 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमने दोनों तरफ अगर p1 का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वैल्यू 0 हो गई, अप टू ये वाली वैल्यू 0 हो गई, एंड दिस p1 into p1 is again you are getting 1, and this is xi into p1. So this is like how you are getting. Fine. So these are the some values available over there. So let's say हम उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करें, तो this is alpha ij is equals to your xi transpose pj. So this is our xi and this is our pj. Fine. So this is our just a simple matrix available here. So this alpha is none. This alpha is now is represented as in my new transform data. मेरा नया transform data हुआ है ना. ये पुराना data जो था हमारा, this is supposed to be like दिस इज माई डेटा. इसमें हमारे जो वेक्टर्स थे, एक एक रो थी या एक एक कॉलम जो भी था हमारा, वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं था. फाइन. सो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे. हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे कैसे? उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे. कैसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे? हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे लाइक इन सच अ वे. Fine. So this is my x, so this is x and y, so this is my column 1, this is my column 2. तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूँगा. This is my now new transform data. Fine. So this is how we are going for this like
this is my new transform data. So this is my x hat is like xp. So this is an matrix of our new transform points. Fine. Now we are calculating the covariance of our matrix. Why we are going for this covariance, मैं उसको कल इंक्लूड करूंगा कि हम covariance पे क्यों जा रहे हैं. हम एक्चुअली वेरिएंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. वेरिएंस क्यों कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा जिस पर्टिकुलर एक्सिस पे, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे से इस पर्टिकुलर एक्सिस पे हमारा कोवेरिएंस ज्यादा होगा या वेरिएंस हमारे पास ज्यादा होगा. इट मींस के हमारे पास डिस्पर्शन ज्यादा है. इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है और जिस एक्सिस पर हमारी इंफॉर्मेशन ज्यादा है उस एक्सिस को हमको लेना है. दिस इज सिंपल. सो वी आर गोइंग फॉर अगेन कैलकुलेटिंग द कोवेरिएंस मैट्रिक्स. सो here we are going to calculate our covariance matrix. So this is our covariance matrix. So it means that we are having a covariance matrix with our column mean is equals to 0. अब हम उसको column mean equals to 0 करा है. हमने उसको transform करा था. क्यों हमने transform करा था? This is my transform matrix. This is x transpose. तो this is my x transpose. तो अब ये मेरे जो columns है ना, मेरे ये particular रोज जो थी वो रोज मेरी कन्वर्ट हो गई कॉलम में. फाइन. सो अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो कॉलम्स थे उनका मीन 0 था. अभी हमने पहले क्या करा था? हमने रो का मीन 0 करा था. नाउ व्हाट वी आर, इफ वी आर गोइंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज ट्रांसपोज. सो दिस इज ट्रांसपोज. इट मींस दैट आवर कॉलम मीन इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ कॉलम मीन 0 है तो हम अब इस पे आगे काम करने की कोशिश करेंगे. फाइन. सो अगेन वी आर गोइंग फॉर लाइक, so this is my covariance formula. So this is my x ki minus mu I, then x kj minus mu j. मेरे पास दो पर्टिकुलर कोई आइटम हो सकते थे, लेट्स से i और j. तो दिस इज माय i कॉलम एंड दिस इज माय j कॉलम. तो i कॉलम और j कॉलम में मैं नंबर ऑफ, अगर अब मैं उस पर्टिकुलर रो में घूम रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर रो में, मेरे पास m नंबर ऑफ रोज थी तो मैं उन पर्टिकुलर m नंबर ऑफ रोज में घूम रहा हूँ. तो दिस इज xi. तो रो, मैं हर पर्टिकुलर रो पे घूमता जा रहा हूँ. जैसे मैं रो वन का फर्स्ट कॉलम, देन अगेन दिस इज रो 1 का जेथ कॉलम, देन रो 2 का आइथ कॉलम, रो 2 का जेथ कॉलम, देन रो 3 का आइथ कॉलम, देन रो 3 का जेथ कॉलम. तो उसका हम कोवेरिएंस निकाल रहे हैं. दिस इज माय कोवेरिएंस मैट्रिक्स. हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे कि ये कैसे निकल रहा है. फाइन. सो दिस इज माय कोवेरिएंस मैट्रिक्स. अब बिकॉज आवर मीन इज एग्जैक्टली दिस इज इक्वल्स टू 0. सो हमारा मीन 0 गया. फाइन. तो मेरा जैसे ही मेरा मीन 0 हो गया, इट मीन्स दैट this values become 0 and this values again becomes 0. So what we are getting this xi, xki and this xkj. यहाँ पर इसको x को स्मॉल ही मानना. So this is my xki and xkj. अब मैं इस पे समेशन लगा रहा हूँ और मैं जैसे मैं इसको समेशन लगाते जा रहा हूँ और n नंबर ऑफ, मेरे पास m नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो what we are getting like full matrix. So this is मेरे पास m number of items थे, these are the constant values. So what we are getting, this is 1 by m and this is my xj. मैं यहाँ समेशन हटा रहा हूँ. So this is my, we are getting the full matrix or full vector of xi and xj. पर्टिकुलर एक वेक्टर मेरे को मिल रहा है. दिस इज xi वेक्टर एंड दिस इज xj वेक्टर एंड देन दिस इज 1 by m था हमारे पास m पर्टिकुलर एलिमेंट्स. सो वी आर गेटिंग xi and xj. सो हम इसमें से ij हटा लेते हैं, हम इसमें से एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट उठा रहे हैं. हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट उठा रहे हैं. तो पर्टिकुलर एक एलिमेंट उठा रहे हैं तो हम इस मैट्रिक्स का x ट्रांसपोज x का, अगेन x ट्रांसपोज x मैट्रिक्स का आइथ और जेथ कॉलम उठा रहे हैं. आइथ एंड जेथ. तो दिस इज आइथ रो का जेथ कॉलम, हम यहाँ से उस पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स का वैल्यू उठा रहे हैं. सो दिस इज माय अगेन कोवेरिएंस मैट्रिक्स और उसके एक एक एलिमेंट हमारे कुछ ऐसे मिलते जाएंगे. सो दिस इज माय कोवेरिएंस मैट्रिक्स. नाउ अगेन we are going from this my projection data. So this projection data is like your x hit x transpose, sorry, x estimated is equals to x transpose p, और this is x transpose p. fine. So हम उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करें तो अगेन मेरे पास कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैसे निकलेगा. तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स में यहाँ पर हम इसका कोवेरिएंस निकालने की कोशिश करें. तो दिस इज माय 1 by m. So this is 1 by m. So this is my 1 by m and this is x transpose x के x. So again x head transpose x transpose. So this is we are getting, और वहाँ पर अगेन हम xp की वैल्यू लिखते हैं. तो मेरे पास xp की वैल्यू आ रही है. दिस इज xp ट्रांसपोज इनटू xp. फाइन. तो हमने इस x एस्टिमेटेड की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी. नाउ अब मैं इसको जैसे ही खोलता हूँ, इस x ट्रांसपोज को मैं खोलता हूँ,
सॉरी इस ब्रैकेट को खोलता हूँ तो मेरा ब्रैकेट में दिस P ट्रांसपोज देन इट बिकम्स X ट्रांसपोज, सो दिस इज माय P ट्रांसपोज देन 1/m X ट्रांसपोज X एंड दिस इज P. सो हाउ वी कैन, हम क्या राइट कर सकते हैं इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज P ट्रांसपोज then some diagonal matrix and then again P. So these are my supposed to be my orthogonal matrix and this is again my orthogonal matrix and in between this is your now small data. तो मैंने जहाँ से पहले दिन से क्लास से स्टार्ट करा था तो मैंने कहा क्या लिखा था, मैंने यही तो लिखा था, लेट्स से मेरे पास जो नोट पैड था कि मेरा जो X मैट्रिक्स था उस X डेटा को मेरे 5x5 मैट्रिक्स को मैं कुछ एक लेट्स से एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में मैंने उसको U ट्रांसपोज बोला था, दिस इज U ट्रांसपोज into let's say U transpose then into my 2x2 matrix then again my U matrix. So we are getting again, so this is my orthogonal matrix and this is my diagonal matrix again. So this is my diagonal matrix, it means that we are getting a square matrix. So this is my square matrix, although ये आपके पास कुछ भी हो सकता था, it doesn't depends, but yeah, so this is my diagonal matrix that is being available. So हम इस diagonal matrix पर काम कर रहे हैं. So 1/m मैंने इसको मैग्नीट्यूड को, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स पे मैं 1/m भी कर लूंगा तो मेरे पास वैल्यूज वही आएंगी. सो दिस इज माय डायगोनल मैट्रिक्स एंड दिस इज नोन एज डायगोनलाइजेशन, जो हमने एक या दो क्लास पहले देखा था. आइदर वी आर गोइंग फॉर डायगोनलाइजेशन और वी आर मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन. सो दिस इज माय मैट्रिक्स और कोवेरियंस मैट्रिक्स जो था मेरा, उस कोवेरियंस मैट्रिक्स का डिकम्पोजिशन पर हम काम कर रहे थे. फाइन. सो इतना समझ में आया. अभी आपको हमने कुछ नहीं करा था, हमने सिंपल एक मैट्रिक्स लिया था, उसका कोवेरियंस निकाला. नाउ if and we had started that these P's are my orthogonal matrix, so this we had started already. हमने यहाँ लिखा था that these Pi are the basis or let's say these are independent, these P's are linearly independent orthonormal vectors. So these are again, these P's are independent and orthonormal vectors. So orthogonal तो होंगे, this is orthonormal है. Then this sigma, this sigma is again square matrix because this X transpose X is this is a square matrix. So what we are trying to do is that we are going for diagonalization of this square matrix. तो हमारे पास जो डेटा था, again आपको याद होगा हमने लीनियर रिग्रेशन में निकाला था, दिस इज एस्टिमेटेड ऑफ B इज इक्वल्स टू X ट्रांसपोज X का होल इनवर्स इनटू X ट्रांसपोज इनटू Y. तो अब हम उस X ट्रांसपोज X जो बहुत बड़ा सा मैट्रिक्स था, उस बहुत बड़े से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था. अब हमको निकालने की जरूरत नहीं है. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट हम उसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ले रहे हैं. तो हमारा मैट्रिक्स बहुत छोटा आ रहा है और बहुत बड़ा मैट्रिक्स उसका पहले मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर उसका हम क्या कर रहे हैं कि इसका इन्वर्स निकालना है. तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. सो हम उसका मैट्रिक्स का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं छोटे से फॉर्म में. सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यूज. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट दिस सिग्मा इज लाइक this sigma is just like your X transpose X and your P is again, this P is your eigen vectors and so this sigma is and diagonal matrix that contains eigen values. Fine. So ओनली हमको अब इतने बड़े मैट्रिक्स का क्या करना है, हमको स्क्वायर मैट्रिक्स लेना और स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालनी है. तो X ट्रांसपोज X हमारे पास एक डेटा था, हमने स्टार्ट करा था कि हम y इक्वल्स टू लेट्स से हमको जो बीटा निकालना था, हम उसका सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने लाइन की इक्वेशन लिखी थी y इक्वल्स टू x बीटा. देन फाइन, हमने इसलिए लाइन की इक्वेशन लिखी थी और इस पर हम काम कर रहे थे. हम क्या काम कर रहे थे, हम ये काम कर रहे थे कि हम उसका इन्वर्स निकालने की कोशिश कर रहे थे. तो हमने स्टार्ट करा था लेट्स से दिस इज माय बीटा इज इक्वल्स टू हमने क्या बोला था, दिस इज अगेन x इनवर्स एंड y. हम ये x इनवर्स ही नहीं निकाल पा रहे थे कि हमको पता नहीं था कि इसका इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा. तो हमने फिर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट निकाला और लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट में हमने क्या करा, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट में हमने यहाँ पर X ट्रांसपोज X इनवर्स करा, यहाँ पे X ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करा, तो दिस इज X ट्रांसपोज X इनवर्स हमने निकाला. देन हमने बहुत कुछ करा था. सो वहाँ पर हमारे पास
प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम हमारा डेटा छोटा कर लेते हैं, हम हमारे डेटा को छोटा कर लेते हैं, मतलब हमने इस x ट्रांसपोज x को, इस पर्टिकुलर इस मैट्रिक्स को इनवर्स निकालना, बहुत बड़े मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के बजाय उसके सिर्फ आइगन, हम उसकी डायगोनल एलिमेंट्स निकालने, और डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है, आपके पास सिंपल सा एक x है, आपके पास एक फाइन, सो हमारे पास एक x मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, देन स्क्वायर स्क्वायर हो गया, मतलब उसका इनवर्स निकल सकता है, पर हमको स्क्वायर अब इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसकी एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का आप आइगन वेक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं, आपके पास आइगन वैल्यूज भी आई जाएंगी, आइगन वेक्टर्स हैं, आइगन वैल्यूज आपके पास हैं, आप ये दोनों निकाल लें, दिस इज फाइन। देन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज लाइक, हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम उस पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज एन योर आइगन वेक्टर का ट्रांसपोज इनटू योर आइगन वैल्यू इनटू योर सॉरी आइगन वैल्यू इनटू योर आइगन अगेन वेक्टर। सो हमने उतने बड़े मैट्रिक्स को छोटे हाँ, एम आई ऑडिबल? 2-3 मिनट वेट करिएगा जरा, कॉलेज की लाइट चली गई है। फाइन। ओके सर।